internationally renowned psychologist, social scientist, and an author of Wiki. Sir obtained his master's and PhD in psychology from Gorakhpur University, and he started his career as lecturer in psychology at Gorakhpur University in 1970. Thereafter, he remained a reader at Allahabad University and Bhopal University before joining Delhi University as professor in 1993, where he served for the rest of his career. And I believe that Sir is one of the youngest professors at his times. I don't know if somebody as young at that age has ever become a professor. Um, so in 1991-92, Sir was a Fulbright Fellow at the university, at the Swarthmore College in the US, and at the University of Michigan also. And Sir has been the chief editor of the fifth ICSSR Survey of Psychology published by Indian Council of Social Science Research. And for 15 years, until the end of 2015, he was the editor of Psychological Studies, a journal of the National Academy of Psychology, India. Sir is the former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi International Hindi Vishwavidyalaya in Wardha, Maharashtra. It is, I think, this introduction is not even a glimpse of the volume of work that Professor Mishra has done during his career and is relentlessly continuing to carry on with it. Even now, I hear from Sir, about the books that he's working on and the journals that he's working on. So he is a big motivation and an inspiration for me. He has always been, and I'm sure for a lot of us whoever has been associated with him. So this was just like I would say, Suraj ko roshni dikhana sambhav hai. So sir, please forgive me for this short description of you and your work, sir. So it wasn't justice at all, but there is so much more which will unfold during this 1 hour session that we have. So now I should request Honorable Professor Dr. Mishra sir to please address the audience who's eagerly awaiting for your talk with great enthusiasm. Thank you so much, sir. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. भगनी निवेदिता महाविद्यालय और भास्कराचार्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार में मुझे आपने आमंत्रित किया। मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मेरे विषय में अभी एक परिचय दिया गया, उससे आपको ये मालूम हुआ होगा कि मैं मनोविज्ञान का एक विद्यार्थी हूँ। हमने आज जिस विषय पर बातचीत करने के लिए यह अवसर चुना है वह हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और आशा कि आप सब जहां भी हैं स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और इस महामारी के दौर में अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ रहे हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मित्रों, इस कोविड-19 की महामारी ने हमारे सामने एक विचित्र सा
सवाल खड़ा किया है जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है कि हम अपने आप को जिस तरह जी रहे हैं वह जीना कैसा है और वो हमारे अस्तित्व के लिए कितना लाभदायक हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मनुष्य की जो जिंदगी शुरू होती है वो एक बड़े असहाय व्यक्ति के रूप में होती है। मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के बाद यदि माता पिता या अभिभावक के द्वारा उसको उचित पालन पोषण न मिले तो वो अपनी जान खो बैठेगा। पशु का बच्चा तो तुरंत खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है। गाय बछड़ा देखिए आप, पैदा होते ही वो दौड़ने लगेगा। लेकिन मनुष्य की जो असहायावस्था है वहां एक प्रकार की सामाजिकता, सोशियलिटी उसकी एक बड़ी खास परिस्थिति बनाती है, जहां पर दूसरों के रिश्ते के बीच ही उसका धीरे धीरे विकास शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, हमारे सोचने के तरीके में जो बदलाव आता है उसमें इंडिविजुअलिटी जो है या उसका जो निजी अकेला अपना इंडिविजुअल का अस्तित्व है वो महत्वपूर्ण होता चला जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती चली जाती है। यहाँ तक कि जितना ही ज्यादा वो इंडिविजुअल अपनी अपनी सिर्फ अपनी अहमियत बनाने लगता है, उसी को हम महत्व देने लगते हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी व्यक्तित्व की परिभाषा ही कुछ इस तरह से करते हैं कि वो हर आदमी की एक यूनिक, उसकी अनोखी, जो सिर्फ उसकी विशेषताओं का समूह हमारे सामने पेश करती है। तो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे केंद्र में आ जाता है और समाज जो है वो पेरिफेरी पे चला जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि व्यक्ति और समाज का जो रिश्ता है वो किस तरह का है। व्यक्ति की जो वेलबीइंग है और समाज की जो वेलबीइंग है, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता है? अगर है तो उसको परसू करने का, उसको आगे बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? क्या हम वह तरीका अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं? ये भी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज जिस महामारी की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो गई है, उसके बारे में इधर बहुत सारे विचार, लेख, शोध हो रहे हैं और उस समय कई जगह ये बात आती है कि इसके बारे में काफी पहले से लोगों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। रेस्पिरेटरी किस्म के महामारी का अंदेशा बहुत पहले से लगाया गया था। 2004-08 में तो काफी स्पष्ट रूप से इसकी बात की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, बताया गया था सबको कि ऐसा कुछ हो सकता है। धरती पर मनुष्य जो है इतना बड़ा भार हो गया और उसके आचरण और उसके व्यवहार के परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों का एक हिस्सा यह भी है जो महामारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। और यह भी बात साफ हो गई है कि हम उस महामारी के लिए ठीक से तैयार नहीं हैं और हम उसका सामना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आज विश्व के सभी अति विकसित देश, जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप देख लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, तमाम सारे ये देश हैं जहां पर जीवन बड़ा दुखमय हो गया है, जहां हजारों हजार आदमी जान गंवा बैठे हैं और लाखों की संख्या में लोग इससे अभी पीड़ित बने हुए हैं। ये एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जो हमको अपने ऊपर विचार करने के लिए बाध्य कर रही है।
कि हम जो कर रहे हैं, हम जैसे जी रहे हैं, यह कहाँ तक ठीक है, और इसका जो हमने फार्मूला बना रखा है वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है। यह बात इसलिए जरूरी हो गई है कि महामारी के दबाव में आकर हम सब लोगों को अपने आप को बांध करके रखना पड़ रहा है, अपने परिवेश में बांध कर रखना पड़ रहा है, अपने तौर तरीके, खान पान, रहन सहन सब में बदलाव ले आना पड़ा है। और यह एक तरह की बाध्यता हो गई है, a kind of compulsion that everybody has to operate under certain constraints. हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, इन सब के ऊपर इतना बंधन आज आ गया है जो शायद सामान्य जीवन में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये हम बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक चीज का भय है कि कहीं इसका इन्फेक्शन, इसका संक्रमण न हो जाए, कहीं हमारा स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, मृत्यु का भय बना हुआ है। और उस भय के चलते हमने अपने आप को सिकोड़ लिया है, संकुचित कर लिया है, और उसी सीमा के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो कि बड़ा विस्तार में जाना चाहता था, हमने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये जो 3 शब्द लगभग 1990 के आसपास से देश में बड़ी तेजी से लोकप्रिय किए हैं, उसके चलते हम लोगों के सोचने का तरीका बदल गया। शायद हमने कुछ ज्यादा ही कंजम्पशन, मटेरियलिज्म, और इसके साथ ही साथ हम अपनी डिजायर्स को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसी को ठीक मानते चले गए बिना सोचे। तो हम चीजों को संग्रह करेंगे, हम उनका भोग करेंगे, we will acquire, we will possess and we will consume। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो बनता चला गया, और इसके बहुत सारे जो परिणाम हमारे सामने दिखाई पड़े हैं वो केवल हमारे निजी सुख को कितना बढ़ाते हैं ये भी सोचने की बात है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा परिणाम इस तरह का हुआ कि ओबेसिटी भयानक रूप से पूरे समाज में बढ़ गई है। ये भी हमने देखा कि ज्यादातर लोग अब डायबिटीज, हार्ट का जो डिजीज है CHD, इसके अतिरिक्त चाहे जैसे भी हो, कैंसर जिस तेजी से बढ़ा है, कहीं न कहीं ये सब हम लोगों की जीवन शैली से, लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। और ये लाइफ स्टाइल हमारे कंज्यूमर वाले एटीट्यूड से, हमारे मेटेरियलिस्टिक वैल्यू एजम्पशन से जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए, ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं, ये सारे बदलाव कहीं न कहीं उन वैल्यूज को अपनाते हुए हमारे अंदर आ रहे हैं, जिनके कारण हम इन चीजों को ठीक मानते हैं कि हमें जरूरत किसी सामान की है या नहीं, यह नहीं महत्वपूर्ण है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए वो सामान चाहिए। अब हम कोई चीज इसलिए नहीं फेंक देते कि वो काम की नहीं रही या ठीक नहीं रही, बल्कि इसलिए कि अब वो फैशन में नहीं है। तो जो फैशन है वो हमें नियंत्रित कर रहा है, जो बाजार है वो हमें नियंत्रित कर रहा है कि हमको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे ये जितने भी सोशल मीडिया और इसके अलावा जो अन्य माध्यम हैं, टीवी है, फिल्म है, ये सब हमको ये भी बता रहे हैं कि हमको कैसे हंसना चाहिए, हमारे इमोशंस कैसे होने चाहिए, उनका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। ये सब भी
उसी के असर में आ रहा है। इन सम वे we are being controlled by these conditions in our environment. The locus of control has shifted from self to the other. But we think that we are gaining more and more control. The reality is that we are being controlled by these external conditions. We are losing control. अब ये भ्रम हमारे सामने है कि हम सुख पा रहे हैं। We seek happiness. जीवन का उद्देश्य जो है वो हैप्पीनेस या खुशहाली, खुशी पाना है, प्रसन्न रहना है। But it can't be related to only materialistic gain and pursuing these values. Perhaps many of these values are common to animals. The only difference which Indian tradition has maintained is that human beings have the additional quality of dharma, ability to discriminate between right and wrong, what is correct and what is not correct. But what will be the criterion? जो आपको अच्छा लगे इसलिए वो अच्छा है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आपको अच्छा लगे यही काफी नहीं है, वह दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो आचरण है, उससे आपको सुख मिले ये तो एक बात हुई, ठीक है, लेकिन उससे दूसरे को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उसको दुख मिल रहा है? अगर दुख मिल रहा है तब तो मुश्किल है, तब वो क्राइटेरियन ठीक नहीं है। आपके लिए भी ठीक हो और दूसरे के लिए भी ठीक हो। इसको दो शब्द पुराने जमाने में कहते थे, एक है प्रेय, प्रेय मीन्स दैट इज व्हाट यू लाइक, एंड श्रेय दैट वन व्हिच इज लाइक्ड बाय यू एंड व्हिच इज आल्सो लाइक्ड बाय अदर्स। तो जिसे अपनाने से आपका भी हित हो, आपका भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो, क्या ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता जो सोसाइटी के लिए भी अप्रोप्रिएट हो और आपके लिए भी अप्रोप्रिएट हो? जो केवल आपके लिए अप्रोप्रिएट हो और बाकी सबके लिए ठीक न हो, वो शायद आपकी खुशी का एक सीमित रास्ता दे सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों की खुशी को नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इट्स ए बिग प्रॉब्लम। आप ये विचार करके देखें कि आपके किस व्यवहार के कारण औरों को तकलीफ हो रही है, वो आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। कभी कभी या क्या हमेशा हम जब गुस्सा किसी के ऊपर करते हैं तो मन ही मन हम बहुत खुश होते हैं। वी फील हैप्पी कि इस आदमी को नीचा दिखा दिया, इसको डांट दिया, इसको नुकसान पहुंचा दिया। सो यू सेलिब्रेट योर लिमिटेड सेल्फ, unconnected self, separate self. But remember, this self is not the self which is a desired self or desirable self and which is appropriate self. तो कहीं न कहीं हमको अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हमारे सुख की जो व्यवस्था है वो औरों के सुख की व्यवस्था के कितने करीब है या उसके कितने विरोध में है। आप इस बात को थोड़ा और विस्तार में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो समाज की जो परिस्थिति है, राजनीति की जो परिस्थिति है, उन सब में भी ये मुश्किल खड़ी कर रहा है। इसके नाते बड़ी सारी मुश्किलें खड़ी हो। कभी एक जमाना था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि गरीबों के लिए केंद्र सरकार से जो 1 रुपया दिया जाता है उसका सिर्फ 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है और 85 पैसा जो है वो बीच के लोग खा डालते हैं। बीच के लोग खा डालते हैं, वो अपना सेल्फ रियलाइज करते हैं, अपना स्वार्थ जो है उसको पूरा करते हैं और उस 100 पैसे में से केवल 15 पैसा, जिसका वो 1 रुपया पूरा होना चाहिए था, उसके पास उसका सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। अब गनीमत है कि हमारे नए प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी, हर गरीब के खाते में सीधे पूरा उसका 1 रुपया
पहुंच जाता है और बीच में कोई देने वाला नहीं है जो उसका हक जो है मार ले। प्रश्न यह है कि निजी सुख हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है, हमारी बिहेवियर की स्टाइल का एक हिस्सा हो गया है कि हाउ टू मैनेज मैक्सिमम फॉर सेल्फ विदाउट बॉदरिंग अबाउट अदर्स. Ultimately, it is not possible if others are unhappy and you remain happy. That is not possible. हमारी जो संस्थाएं हैं हम उनका भी दुरुपयोग करते हैं, उनका भी अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं. हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, संस्था के लिए हम वो नहीं करते. बहुत सारे लोग हैं जो कि देश के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं. तमाम सारी बातें हैं जो सबको पता है कि किस तरह के स्कैम, किस तरह के प्रॉब्लम्स को पूरा देश महसूस कर रहा है, जबकि हजारों करोड़ रुपए लेकर के लोग भाग गए. आखिरकार ये निर्णय उन्होंने लिया अपने अकेले सुख के लिए. पूरे देश को उन्होंने अलग छोड़ दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं. आप ये हिम्मत करिए कि इतना बड़ा आदमी, इतने पैसे वाला आदमी ये निर्णय करता है कि ये सारा पैसा हम लूट लें अपने हित के लिए. उसके अपने हित की क्या सीमा है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने है कि हर आदमी इस रुपए पैसे की जो चिंता है वो तो अनंत है, और वो ऐसी भी नहीं है कि कभी खत्म होने वाली है, वो हमेशा बढ़ने वाली है. और ये एक ग्रीड की या लोभ की जो प्रवृत्ति है उसका कोई अंत नहीं होता है. लेकिन भौतिक रूप से इस शरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके सुख पाने के लिए क्या चाहिए, ये आप विचार करें. मैं नहीं जानता कि लॉकडाउन में आप घर के अंदर रह करके जो सीमित खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, जो मनोरंजन के साधन आपके पास उपलब्ध हैं, जीवन के लिए जो और उपकरण उपलब्ध हैं, सामाजिक होने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उन सब के बीच आप कितने सुखी हैं और कितने सुखी नहीं. आप अच्छी तरह सांस लें, स्वस्थ रहें, शायद इससे बढ़कर के सुख की बात आज कोई नहीं है. हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे. थोड़ा भी बीमार पड़ता है तो कितनी मुश्किल आ रही है हर आदमी महसूस कर रहा है. तो हमारी जीवन की जो प्रायोरिटीज हैं, सुख जो है वो केवल कंपैरिजन के आधार पर, दूसरे की तुलना के आधार पर, कि हम डिप्राइव्ड न महसूस करें, दूसरे की तुलना में हम कम न अपने आप को आंकें, उससे ज्यादा रहें, सिर्फ इसी के बीच में रह करके हम सुख अनुभव नहीं कर सकते. समय नहीं है कि हम विस्तार से बात करें, लेकिन सुख की अनुभूति या प्लेजर का जो एक्सपीरियंस है, वो जो रिक्शा चलाने वाला है दिन भर मेहनत करने के बाद, या खेत में काम करने वाला है, वो दोपहर में केवल रोटी और नमक खा करके भी उसके चेहरे पे आपको हंसी मिल सकती है. और जो अरबपति है उसको बिस्तर पर सोने के लिए जरूर दवा की जरूरत होती है. कोई ऐसा अरबपति नहीं मिलेगा, करोड़पति लखपति नहीं मिलेगा जिसको बिना दवा खाए नींद आती हो. अब आप ये देखें कि ये स्वास्थ्य का और खुशहाली का रहस्य क्या हो सकता है. आयुर्वेद तो एक ही बात कहता है कि समत्व, सम, आप एक तरह का संतुलन आप बनाए रखिए. कोई एक्सट्रीम जो है, किसी एक तरफ आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा. पूरी भगवत गीता जो है वो भी समत्व की बात करती है. वहां तो भगवान कृष्ण कहते समत्व योग उच्यते,
ये समत्व जो है वो योग है। वैसे बड़ी मुश्किल बात कहते हैं वो तो यहाँ भी कहते हैं कि भाई सुख और दुख दोनों को बराबर समझो, दोनों से बराबर की दूरी रखो। मगर उसको थोड़ा और आप ढंग से देखिए तो उसमें और भी बातें हैं। वो कहते हैं कि युक्ताहार विहार, युक्त एप्रोप्रिएट जो आहार और विहार है, आहार में आप क्या डाइट लेते हैं, क्या खाना खाते हैं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, सफिशिएंट का जो विहार है, व्यवहार आता है, your connections with them, you are a happy person. वीतराग भय क्रोधा, जो भय और क्रोध दोनों से मुक्त है वही आदमी मोक्ष का अनुभव करने वाला होता है। मोक्ष कुछ मरने के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं है या कोई जगह नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, ये सब तो जीवन में आ सकता है। यू कैन बी ए पर्सन with the experience of freedom and living in this world, जीवन मुक्त। So happiness that one person has as जीवन मुक्त is possible only if you have some kind of detachment, a low degree of attachment with things. If you have low attachment, if the list of your needs is small, then you will be happier person. आपको खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, रहने के लिए जगह, इन सब के लिए कितनी चीजें चाहिए, आपको इतना करना पड़ेगा। एक आदमी इस धरती पर आया था जिसका नाम है महात्मा गांधी। उस आदमी ने ये देखा कि उसको कितने कपड़ों की जरूरत है, खाने के लिए कितना चाहिए, रहने के लिए कितना चाहिए। वर्धा जहाँ मैं 5 वर्ष था, वहाँ उनका एक आश्रम है, वहां एक झोपड़ी कह लीजिए नहीं, खपड़ैल का घर है, और उस घर में गांधी जी रहते थे। पूरे 12 वर्ष वहां पर सेवाग्राम में उनका आश्रम है, और वो एक बड़ा ही साधारण किस्म का घर है। मिट्टी दीवार में भी दिखेगी, जमीन भी मिट्टी का फर्श है, और खपड़ैल है, अत्यंत साधारण तरीका। लेकिन गांधी जी ने क्या क्या काम किया ये हम सब जानते हैं, और पूरे देश को कैसे वो जोड़ करके रखे। तब तो मीडिया भी उतना जबरदस्त कोई तरीका नहीं था, लेकिन तब भी उनकी पहुंच पूरे देश में हुआ करती थी। वो महात्मा बन गए, और महात्मा की जो परिभाषा है, महात्मा किसको कहते हैं, अगर आप उस पर गौर करें तो यही है कि जो मन में सोचे और जो कहे और जो करे वो महात्मा होता है। और गांधी जी तो यहाँ तक लिखते कि बाबा हमने जो कुछ किया है वही मेरा संदेश, माई लाइफ इज माई मैसेज। उस आदमी के जीवन में इतनी ट्रांसपेरेंसी थी, उसने ये कोशिश की कि मेरे को कुछ छिपाने को नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो मन से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। और यहाँ तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि भाई हम तो सच्चाई को ही भगवान मानते हैं, और सच्चाई मतलब सत्य, सत्य का मतलब अस्तित्व। और राम को खूब याद करते थे, रहीम को भी याद करते थे, जरथुस्त्र को भी याद करते थे, और ईसा को भी याद करते थे। उनके प्रार्थनाओं में सभी धर्मों की प्रार्थनाएं थी। उन्होंने ये कोशिश की इस सत्य को देखने की कि सचमुच ईश्वर जो है, उसको आप जो भी नाम दे दीजिए, है तो वह ईश्वर ही। तो सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो नाम आप अलग अलग उसका दे लीजिए, लेकिन वह ईश्वर तो एक है। तो इस तरह की जो समता की दृष्टि है, जिसमें सबको आप एक ढंग से देख सकते हैं, ये प्रयास उन्होंने
किया। और इस प्रयास के लिए उन्होंने कई स्तरों पर काम किया। निजी स्तर पर काम किया और निजी स्तर पर काम करके उन सारी बातों को व्यवहार में ले आए। जितने कपड़े की जरूरत है उतना रखो, जितने सामान की जरूरत है उतना सामान रखो, उस तरह का जीवन आप जीने की कोशिश करिए। प्रकृति में जितनी चीजें मौजूद हैं उनका आप उपयोग करते हुए जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मिट्टी के, पानी के, ठंडे पानी, गर्म पानी, इन सबका उपचार में, ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी उसका पालन किया। और बताते हैं कि वो जीवन में शायद केवल 1 या 2 बार उनका जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल से ज्यादा हुआ था। हर रोज वो अगर एवरेज लिया जाए तो 17-18 किलोमीटर चला करते थे। उनके जीवन का एक बड़ा भारी हिस्सा जो था वो चलने में बीता है, पैदल चलने में बीता है। और उनका एक नियम ये था कि शरीर के श्रम का उपयोग होना चाहिए। और शरीर का जो श्रम है, लेबर जो है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आप मोटे नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खूब अच्छी तरह काम कर पाएंगे, अपना भी और दूसरों का भी भला कर पाएंगे। तो शरीर जो है वह एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। वो शरीर का कैसे उपयोग किया जाए यह विचार करने का प्रश्न है। अब आप कहिए कि इसका स्वास्थ्य और हैप्पीनेस से और निजी और सबकी हैप्पीनेस से क्या रिश्ता है, तो बड़ा साफ है कि अगर आप शरीर का उपयोग करते हैं, श्रम करते हैं, तो आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी, शरीर भी ठीक रहेगा, आप अपना भी हित कर सकेंगे, दूसरे का भी हित कर सकेंगे। ये अपना हित और दूसरों का हित, इसके बीच में रिश्ता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य बना रखा है, अपना मोक्ष, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय, जगत का हित हो और अपना मोक्ष। ये मोक्ष जो है वो बड़ा मुश्किल शब्द लगता है, मगर इसका एक बड़ा साधारण अर्थ एक जगह मैंने पढ़ा कि मोह जो है वो खत्म हो, मोह का क्षय होना। If you reduce all these attachments, then you are free. Think and analyze the condition. जितने आपके एफ्लिक्शंस हैं, जहां जहां पर अटैचमेंट्स हैं, वो सब आपको बांध के रखते हैं। और ये अटैचमेंट जहां टूटे, आप स्वच्छंद हो गए, स्वतंत्र हो गए, मोक्ष आपको मिल गया। I think it's very important to analyze our needs. And we must critically examine them, what we really need and what we don't need. सब कुछ की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हम लोग अनावश्यक रखे हुए हैं। हम सब के पास जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं, साधन हैं, जिनको नहीं चाहिए उनके पास खूब है, जिनको चाहिए उनके पास नहीं है। धन का असमान वितरण है, बहुत सारे गरीब हैं। हम लोग रोज देख रहे हैं कि किस तरह लाखों की संख्या में लोग शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं और गांव में पहुंच करके उनको कष्ट भी हो रहे हैं। कई तो रास्ते में ही बेचारे टूट जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल की दशा हमारे सामने है। तो जब तक हम अपने हित और समाज के हित दोनों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा कि हम कल्याण कर पाए। हमारा हित दूसरे के हित से जुड़ा हुआ है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने आप को संकुचित बनाए रखते हैं। हम इस सेल्फ का विस्तार कैसे कर सकते हैं? ऐसा सेल्फ आपका हो सकता है जिसमें किसी से आपको भेद ही न हो। आप अपने लिए जिसको अच्छा मानते हैं वह व्यवहार दूसरे के लिए भी अच्छा होगा, और जिसको आप
अपने लिए खराब मानते हैं वह दूसरों के लिए भी खराब होगा। सो एम्पैथी शुड बी द बेसिस। ये महसूस कर पाना, दूसरों की परिस्थिति को महसूस कर पाना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। और ये अगर आप थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यह चेतना केवल मनुष्यों में तो नहीं है। आप पशु पक्षी में भी चेतना देखते हैं, आप पेड़ों में भी आप देखते हैं, आप जल में भी देखते हैं। आज लोग कहते हैं कि यमुना भी कुछ साफ हो गई है, दिल्ली की हवा भी अब उतनी गंदी नहीं रही जितनी पहले थी। ये सब तब हुआ जब आपके कुछ हस्तक्षेप कम हो गए, कुछ इंटरवेंशंस कम हो गए, तो पर्यावरण, प्रकृति, इन सब के ऊपर भी हमने अधिकार करना शुरू कर दिया और उनका भी जिस तरह से हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया उसका भी परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो आज की परिस्थिति हमको इस पर विचार करने के लिए बाध्य कर रही है कि हमारा जो स्व है वह थोड़ा एक्सटेंडेड होना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ करके होना चाहिए, जिसमें सभी शामिल हों। मैं समझता हूँ कि हमको और लोगों की भी बात सुननी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रश्न करें, कुछ विचार करें और मैं आपसे संवाद स्थापित करना चाहूंगा, यह देखने के लिए कि सचमुच क्या तरीके हो सकते हैं जहां पर हम दूसरे से जुड़ सकते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य जो है दूसरे की जब तक चिंता नहीं करेगा तो कौन उसकी चिंता करेगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। तो स्वार्थ में नहीं बल्कि परार्थ में जीवन है। प्रकृति भी हमारे बीच है और हम प्रकृति के बीच में हैं। As a matter of fact, our thinking has become too individual centered or person centered or human centered, and this environment, this entire natural scene and facility has been considered to be something to be consumed for our own personal benefit. मगर हम ये भूल जाते हैं कि अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कैसे? ये हमारा जो जीवन है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी खुशहाली है, वो केवल हमारे प्रयास से नहीं हो सकता। बाजार अगर बंद है तो आपके पॉकेट में रुपया बहुत सारा रहे तब भी आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। ऐसा हो रहा है, हमारी बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे जिए, हमारी जीवन शैली क्या हो। महामारी के बाद हो सकता है कि हम में से ये सारे कष्ट जो हैं वो भूल जाएं, हम फिर हम पुराने रास्ते पर आ जाएं। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। हमको विचार करना पड़ेगा कि अपनी जीवन शैली जिसमें हम जिए और दूसरे भी हमारे जीवन में सहभागी हो सके, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं अपनी बात यहाँ पर रोकूंगा और चाहूंगा कि आप भी इस पर विचार करें। और अंत में मैं अपने एक मित्र कवि जो हिंदी के हैं, उन्होंने एक बड़ी मजेदार कुछ दिनों पहले एक कविता, इधर रोज वो कविताएं लिख रहे हैं, और ये कविता है जिसका उन्होंने शीर्षक रखा है पर निर्भर जीवन। पर का मतलब होता है दूसरे के ऊपर निर्भर जीवन। आप इसको ध्यान से सुने। जीवन पर निर्भर है पृथ्वी पर, जल पर निर्भर है अग्नि पर, आकाश पर निर्भर है हवा पर, सृष्टि की लोक सभा पर निर्भर नहीं स्वार्थ पर, परमार्थ पर निर्भर है। मित्रों, हमको यह परस्पर निर्भरता याद रखनी पड़ेगी। यह विचार करना पड़ेगा कि जीवन प्रकृति में है, प्रकृति से है और उससे दूर रह करके वह प्रकृति जिसमें और सारे मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, जीवन की पूरी कायनात जिसमें मौजूद है, उसकी चिंता भी हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। तभी हमारा भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। और व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल और सोशल, ये
आमने सामने एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में होनी चाहिए। हमको अपनी संस्थाओं की भी चिंता करनी पड़ेगी, समाज की भी चिंता करनी पड़ेगी। आखिर कौन इसकी चिंता करेगा? मैं समझता हूँ कि इन विचारों में आपको कुछ सोचने के लिए मिलेगा। मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस जीवन को, समग्र जीवन को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो कविता मैंने सुनाई थी, पर निर्भर जीवन, यह हमारे एक मित्र हैं श्री ध्रुव शुक्ल, ये भोपाल में रहते हैं, हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं, और उनकी यह कविता थी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुछ प्रश्न है सर, अगर हम ले सकते हैं तो? जरूर। सर काफी रेवोल्यूशनरी नाम है इनका, देशद्रोही जी। इनका प्रश्न है, क्या मोह का क्षय ध्यान, धारणा, समाधि से प्राप्त हो सकता है? क्या क्या एक बार फिर से बताएं? क्या मोह का क्षय ध्यान, धारणा, समाधि से प्राप्त हो सकता है? ध्यान, धारणा और समाधि के पहले भी कुछ है, और उसका नाम है यम और नियम। और यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ये सीढ़ियां हैं, तो बिना सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के ध्यान, धारणा, समाधि बटन दबाने से नहीं कुछ आने वाला है। जब तक आप अपने व्यवहार, आप, ये गजब की बात है, मैंने इसका उल्लेख नहीं किया समय को ध्यान में रखते हुए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कहीं लिखा नहीं है कि गांधी जी योगी थे, लेकिन पूरे जीवन में उन्होंने इसका पालन किया या कोशिश की, और तभी कुछ संभव हो पाया उनसे। तो ये विचार हमारे मित्र का बड़ा अच्छा है। ध्यान, धारणा, समाधि ये अपने आप को सबल बनाने के माध्यम है, आपके अपने अंतर में अपने आत्म के स्वरूप को समझने का माध्यम है। लेकिन अगर आप देखें कि जो योग सूत्र का उन्होंने चूंकि उल्लेख किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, योग सूत्र में पहला कहा गया योगश चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग जो है चित्त वृत्ति का निरोध है। तो जो मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, कभी मन ये कर रहा है, कभी वो मन कर रहा है, इस मन का तो बड़ा तमाशा है ना, ये जिधर जाता है उधर का हो जाता है। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण से बार बार कहते हैं, बाबा ये बड़ा बदमाश है, और ये तो बिल्कुल हवा की तरह इधर उधर भागता रहता है, बड़ा चंचल है। तो उसकी चंचलता अगर कम हुई, अगर ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण हुआ, तभी अपना साक्षात्कार होगा। और देखिए ना, योग सूत्र का जो दूसरा है, कि दूसरा जो उसका सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोधक के बाद अगला जो आता है वो है कि तब वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मतलब जितने अटैचमेंट थे वो अगर हट गए, तो बिना अटैचमेंट का जो प्योर आपका सेल्फ है वही उपलब्ध रहेगा, वही मौजूद रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो सदविचार है वो बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके लिए और भी तैयारी करने की आवश्यकता है, तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। सर एक प्रश्न और है आशीष कुमार जी का, ये जानना चाह रहे हैं, कुछ केंद्र बिंदु आप बता सकते हैं कि आज के समय में तनाव को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है पैंडेमिक से हुए? जी जी जी, मेरा ख्याल है कि यह एक बड़ा सामान्य प्रश्न है और सबके मन में है कि जो तनाव पैदा हो रहा है वह कैसे कम किया जाए। लेकिन ये बहुत व्यापक प्रश्न है और इसका व्यापक उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन तनाव के तमाम सारे कारण हो सकते हैं।
और जैसे एक विद्यार्थी, उसकी कक्षा नहीं हो रही इसलिए उसका तनाव है, दूसरा कोई व्यक्ति है उसको बाहर घूमने का अवसर नहीं मिल रहा है इसलिए तनाव है। तो सबके तनाव के अलग अलग कारण होंगे और शायद उनके लिए उपचार भी अलग अलग होगा। मैं समझता हूँ कि एक जो सामान्य तनाव की जो परिस्थिति अगर आप लें तो उसमें जो आवश्यक परिवर्तन हमको अपने अंदर ले आने की जरूरत है वह यह है कि हम अपने रूटीन को, जो प्रतिदिन जीने की जो पद्धति है उसमें क्या परिवर्तन ले आ सकते हैं, किन नए संसाधनों का, व्हाट न्यू रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड, कैसे आप वह कर सकते हैं, इसमें अपनी लिखाई पढ़ाई कैसे आप कर सकते हैं, लोगों से संपर्क कैसे कर सकते हैं, जो लक्ष्य आपके हैं। देखिए सारे तनाव इसीलिए आते हैं कि आपके लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, नीड आपकी पूरी नहीं होती है। तो आप ये देखें, आप की नीड जो है उसके एनालिसिस करिए, जो अनावश्यक है उनको हटा दीजिए, जो आवश्यक हैं, और देखिए कुछ परिस्थितियां तो स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब लॉकडाउन है तो आप सड़क पर जाएंगे, पुलिस आपको उठा ले जाएगी, तो इस परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके अंदर जीवन कैसे अच्छी तरह जी सकते हैं इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अब आपका मन जो कहे वही आप करते रहें, इस मन के ऊपर नियंत्रण ले आना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक आप विचार नहीं करेंगे, संयम नहीं ले आएंगे, कुछ संतोष नहीं ले आएंगे, जब तक आप सचमुच कुछ आसन प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपका तनाव भी आपके हाथ में है, आपका सुख भी आपके हाथ में है। आप अपने को पुनः परिभाषित करिए। You need to redefine yourself in terms of your needs, in terms of your necessities, in terms of the action tendencies which are there, which are possible. I think you need to re-examine yourself critically. I think that is the only way. सर, अधिकतर जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे अभिव्यक्ति हैं आपके प्रति कि आपका वक्तव्य बहुत ही सुचारू रूप से था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, and everybody is very thankful to you for such a enlightening point of view to make us interpret and reflect upon things which we probably would not otherwise. I have a question, sir, if I may ask. कि क्या सर आपको लगता है कि आजकल होड़ है इतनी चीजें इकट्ठी करने के लिए, क्या इंसान अपने अंदर के सूनेपन को भरने के लिए चीजों को एकत्रित करने की होड़ में है? Is there something which is empty within us which we try to fulfill or fill through external and luxurious commodities? I think this is a very significant question before everybody, and it relates to our definition of self. Our own understanding of self is perhaps in trouble. We have tried to identify ourselves with these various objects, commodities, and we think that we live through them, those objects. And if we have more and more and more of those objects, then we realize ourselves. I think there is some kind of confusion which is prevailing, and we are not trying to understand this confusion. We need to resolve it, that our self and the attachments that are with them, these are two different things. There is no end to it. Now, when you are saying that there is emptiness, empty self, and that has to be filled, how you are going to fill that? But again, there will be a question that if you fill that, is there any guarantee that that filling will be for the whole next 1 year, or again it will immediately, you will feel that you don't have that. You have something, some model of car or some kind of pen or anything, you have a new model. You have your mobiles, every year Apple will introduce another model.
So they are doing business. Now, this emptiness is because of social comparison, primarily. And you need to locate yourself within yourself, not in the outer world. And if you compare with others, you are always going to feel deprived. It's a big issue. And there is no end to that. So, what is your own self definition? That is the key question. So, emptiness comes from that. For example, whether we like it or not, many people think that, well, we are, please remember it, we are reflections of something great. Ishwar Ansh Jeev Avinashi, that you are part of that great being, which is Avinashi. There is no end to that, and there is no beginning of that. And if you feel like that you are connected with that, then perhaps there is no question of emptiness. You are empty because your identity is problematic. So it is the quest for identity, and if you think in broader terms, when you relate to a higher being, perhaps you have another way to live. Well, I think all of us are familiar with Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and that is nothing but to enlarge your identity. You develop connection with that great existence. And if you are part of that being, then there is no question of emptiness. Now, you can find a source. Perhaps emptiness comes from social comparison with external reality, what is happening there. We need to introspect and examine that what is the worth of that. I will recommend you to read an interesting book. It's the title is I just forgot. Anyway, I'll get back to you on that. I will let you know. It talks that, well, oneself was created and we liked it, and it has become a problem. So, how self becomes a problem, you need to bother about it. It's a puzzle, and you need to resolve it. And this is a challenge before everybody. And a modern man has moved in that direction, that possessions define them. But I think that is not an appropriate way to conceptualize self. So, understanding self is the major question. And this emptiness comes from social comparison relating to the external, whatever is present in there. And there is no end to it. You get one thing, then you will need another thing, you will need another thing. So that's why Gita says that self is your biggest friend and self is your biggest enemy. If you are able to regulate, control yourself by yourself, then yourself is your greatest friend. And if you fail in doing that, then yourself becomes your greatest enemy. You've taken me back to your master's class of psychology of self, sir. And I can't thank you enough. It's always been a pleasure. This self-reflective exercise, I think we all need to undertake. Sir, because हमारी एजुकेशन अंग्रेजी में है, थोड़ी हिंदी में उतना धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हम. बट आपने जो कहा, जो संचय की बातें की हैं, आई थिंक हम सबके लिए there is a takeaway home कि we need to look within and re-look at our priorities. The world ahead needs to see कि we need to, you know, like सर्वे भवन्तु सुखिनः. हम अकेले सुखी होके नहीं जी सकते. सबका साथ और सबका विकास. I'm not being political here, but जरूरी है मानव for human existence to exist. Thank you so very much, sir. I request Principal Sir Dr. Balram Pani to kindly extend a vote of thanks. Pani sir.
Thank you. Thank you all so very much, sir. Pani, I am sir. audible? Yes, sir, you are audible. Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Good afternoon, Professor Gracious Sir Mishra ji, and other members of the organizers, and Professor Charu Sharma ji, the principal of Nivedita College, and this is the psychological, means this pandemic situation, this is the psychological game. Whosoever is psychologically stronger, he will be the owner. Means he will be the winner of this game. And right now, means whatever he has given means at the starting point, he has given the lecture that togetherness, that is the Sehna Bhavatu. At the end also, we are saying that whenever at this pandemic situation, we will be maintaining some discipline and the punctual manner, and we will change our lifestyle, and togetherness will win the game. And right now, again, I am ending this situation, that is with the vote of thanks, by saying Om Sangathadum Samvadadvam Sambho Manasi Janatam Deva Bhagam Jatha Purbe Sanjanana Upasati. Om Shanti Shanti Shanti. We saying this is the togetherness. At this situation, if we will come together and work together, then definitely we will win the situation. There is no problem at all. And the psychologists, the strategists, the planners, the thinkers are here to help us how to come out psychologically. So here is the very eminent personalities. I think means a good number of the participants are here, and I give my sincere thanks to everybody at this situation. This is particularly our teaching fraternity. They are very, very busy in their work, that is the online classes and the preparation of the examination of the students. Since there are so many activities right now it is going on. Still then, they have spared some time for this lecture, and this lecture is very, very interesting and very informative one. So definitely I think everybody has enjoyed it. And again, I give my sincere thanks to everybody, each and everybody of this participants and the organizers and the professors whosoever have joined in this program. I again thanks to them, and thank you all. Thank you. I would like to add one last note, sir, for everybody else. It's always a privilege to listen to one's own teacher, guru and mentor. So, sir, ये जो learning है आपके समक्ष आपसे जो मिलती है, वो it is endless and boundless. So the essence of what I have gathered is that the universe has probably given this opportunity to all of us to go within our own selves, to realize who we actually are. And this pandemic has made us stop, come to a halt, where we were acting as robots, and our lives were taken away as being very mechanical. So this has made us stop and reflect upon what is the purpose of life. Why were we really born? And what is self-enlightenment or awareness of our own selves. So, sir, this is the takeaway that I have had from the pandemic. या तो हम मशीन की तरह भागते दौड़ते रहें और इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाए, या फिर कभी अपने आप के बारे में सोचें और अंदर झांके कि वास्तविकता क्या है, इस जीवन की वास्तविकता क्या है. And thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Madhulika, you have to unmute yourself, please. Madhulika, can somebody unmute her, please? Lastly, I would like to extend my heartfelt thankfulness to the organizing team, especially Dr. Satyam Dwivedi and Dr. Purnima Dhar, for putting it all together so very well.
barring a few glitches which happens because all of us are trying to figure out how to work on these online platforms. But they have done a commendable job. Thank you so very much on behalf of all of us. And thank you once again to all the participants for sparing your time to be a part of this webinar. And Mishra sir, we cannot thank you enough for sparing your time and be with us and give us these pearls of wisdom. Thank you very much. With this, with your permission, ma'am, if we could close the webinar for the day. Definitely. Thank you so much, Dr. Madhulika, Dr. Satyam, Dr. Purnima, and everybody else who's made this happen, and all the participants who've been actively participating. So thank you, Dr. Pani and Professor Mishra. Thank you. Let's close this now. Yes, please. Thank you very much. You may please exit.